Good morning, everyone. Students, we have started chapter 3rd, the politics of planned development. And in previous video, I have discussed about the planned development with you. It means the ideas of development and the planning commission. It means what was the point of view of left wing and the right wing people, what was Bombay plan and how it worked. Student, in this video, we will talk about the early initiative. It means the 5 year plans of India. As we know that 5 year plans, they are centralized and integral national economic programs. And Joseph Stalin, he was the first who finally set up the 5 year plans in Soviet Union in 1928, and later on so many communist states they have adopted them. And in India, from 1947 to 2017, the Indian economy, it was premised on the concept of planning, and this was carried through the 5 year plans, which was developed, executed and monitored by planning commission. Planning commission कह लो from 1951 to 2014, and then नीति आयोग from 2015 to 2017. सो 5 year plans जो हैं वो इंडिया में बनने लगे. और बच्चे 5 year plan somewhere had been adopted by India from USSR. What are 5 year plans? 5 year plans means the planning of income and the expenditure for the next 5 years. And student, 5 year plans, it can be divided into two parts. The plan budget means there will be a special planning कहाँ कहाँ खर्च करना है in the next 5 years. And non plan means जो daily routine में हम खर्चा करते हैं, this is the non plan budget. And student, जो draft था, the draft of first 5 year plans and the actual plan, it was released in 1951. सो अगर मैं फर्स्ट 5 year प्लान की बात करूँ, फर्स्ट 5 year प्लान वॉज फ्रॉम 1951 to 56, and the first Indian PM, Prime Minister Jawaharlal Nehru, he presented the first 5 year plans to the Parliament of India, and needed urgent attention. And student, the first 5 year plans focus was on the primary sector. With the primary sector, it also focused on dams and irrigation, but the main focus was the primary sector. And student, the total plan budget was that time even more than 2000 crore. It means इतना बड़ा बजट के साथ फर्स्ट 5 year प्लान्स स्टार्ट किया गया सॉरी. एंड इट वाज एलोकेटेड टू 7 ब्रॉड एरियाज. इरिगेशन भी थी, एनर्जी भी थी, लेकिन मेनली एग्रीकल्चर, देन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ लैंडलेस फार्मर. अब बच्चे जो 5 year प्लान स्टार्ट हुआ फ्रॉम 1951 टू 56, यहाँ एक नेम गिवन है के.एन. राज. बहुत सारे लोगों ने ड्राफ्ट किया, लेकिन जो के.एन. राज है, अ यंग इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग द प्लान, ही आर्ग्यूड दैट इंडिया शुड हेस्टन स्लोली for the first 2 decades as the fast rate of development might endanger democracy. हेस्टन एंड स्लोली, ये दोनों वर्ड इकट्ठे हैं. हेस्टन का मतलब होता है जल्दबाजी, एंड स्लोली मतलब धीरे. तो उन्होंने क्या कहा, जो उन्होंने क्लियर किया कि जो हम फर्स्ट 5 year प्लान लेकर चल रहे हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी, हमें धीरे धीरे काम करना है इसके लिए. क्योंकि एग्रीकल्चर दैट टाइम वॉज इन द स्टेगनेशन पीरियड, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो इन द फर्स्ट 5 year प्लान जो फोकस किया गया, वो किस पे किया गया, एग्रीकल्चर पे. एग्रीकल्चर के साथ साथ बच्चे एग्रेरियन इकॉनमी थी, एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि भाखड़ा नंगल डैम को सेटअप किया गया था, एंड एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द पीपल दे गेट डिस्प्लेस्ड एंड दे लॉस देयर लाइवलीहुड. सो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो लोग वहाँ से डैम की वजह से हटाए जा रहे हैं उनको अब लैंड प्रोवाइड करवाना. एंड लैंड रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे इसमें. लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है द अबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम, पीजेंट्स एंड टेनेंट्स. इसके अलावा बच्चे
अगर मैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, the main objective was to increase the national income, was to increase the saving as well as the investment. ये उस टाइम क्यों था? बिकॉज द होल कैपिटल, अगर मैं होल स्टॉक की बात करूँ इंडिया में, इट वॉज वेरी लो दैट टाइम. और जो हमारे लीडर्स हैं उन्हें ये लगा कि हमें सेविंग्स को बढ़ाना है, हमारी नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, लोग जो है सेव ज़्यादा करें और पैसा कम खर्च करें, क्योंकि जितना वो सेव करेंगे वो उतना इन्वेस्ट कर सकेंगे. कहीं ना कहीं बैंक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट होगी, जिसकी वजह से जो ओवरऑल कैपिटल है, ओवरऑल स्टॉक है, वो बढ़ेगा. बट अगर मैं बात करूं 1960 तक, जो फर्स्ट 3 प्लान्स थे हमारे, उस टाइम तक सेविंग बढ़ी भी है. बट इन 1960 and in 1970, it means I can say between the 1960 and 1970 the saving got reduced. That is why जो प्लान हॉलीडे लेना पड़ गया था. प्लान हॉलीडे का मतलब है कि जहाँ हमने 4th 5 ईयर प्लान अडॉप्ट करना था वो हमने नहीं किया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि सेविंग्स बहुत कम थी. So I hope the first 5 year plan is clear to you. And student, even at the end of this plan, in 1956, 5 Indian institutes of technology IITs were started as a major technical institution. जो हम UGC देखते हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, it was even the setup to take care of funding and to strengthen the higher education in the first 5 year plan. So the next topic is rapid industrialization. In the rapid industrialization, we will discuss the second 5 year plan. It means from 1956 to 1961. And student, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने जहाँ प्राइमरी सेक्टर पे फोकस किया था, द सेकेंड 5 ईयर प्लान इट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. इट मीन्स एक पर्सन थे, द प्लान फॉलोड द महालोलोबीस मॉडल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल, आई कैन से, डेवलप्ड बाय द इंडियन स्टैटिस्टिशियन प्रशांत चंद्र. इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महलोबिस. इसका मतलब है बच्चे, इन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में KN राज ने क्या कहा कि जल्दबाजी नहीं दिखानी, लेकिन जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है फ्रॉम 1956 टू 1961, इसमें हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे प्रशांत चंद्र महालानोबिस. उन्होंने ये कहा कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए. रैपिड मतलब थोड़ा फास्ट चलना है अब इसमें हमने, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया. इससे पहले बच्चे एक कांग्रेस का सेशन हुआ था इन अवधि इज़ इन द मद्रास, एंड वहाँ जो है उन्होंने डिक्लेयर किया कि दैट वी विल फॉलो द सोशलिस्टिक पैटर्न. सोशलिस्टिक पैटर्न का यहाँ मतलब है कि अब जो है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी फॉलो करेंगे. मतलब गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगी, पब्लिक सेक्टर को इनकरेज किया जाएगा, गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी की एक हेल्प करेगी. एंड अगर मैं टोटल अमाउंट बात करूँ, एलोकेटेड अंडर द सेकेंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज 48 बिलियन. एंड इसमें दिस अमाउंट वॉज एलोकेटेड अमंग द वेरियस सेक्टर लाइक पावर, इरीगेशन, सोशल सर्विस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट. एंड स्टूडेंट, the second 5 year plan, I can say, it was a period of rising prices also, and that time even the country faced foreign exchange crisis. और बच्चे, अगर मैं अभी थोड़ा सा आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग चलूँ तो पब्लिक सेक्टर क्योंकि फोकस था कि एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी अडॉप्ट की जाएगी, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चला जाएगा एंड गवर्नमेंट विल हेल्प द पीपल. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, स्टील, मशीनरीज एंड द कम्युनिकेशन, ये जो पब्लिक सेक्टर थे ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुए. एंड बच्चे, इसके अलावा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, इसकी जो टारगेट ग्रोथ रेट थी इट वाज 4.5%, कि 4.5% तक हमें ग्रोथ करनी है. बट जो एक्चुअल अगर हम ग्रोथ की बात करें तो हुई कितनी थी? 4.27%. इसका मतलब है ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे भी अचीव कर लिया था. फिर बचे थर्ड 5 ईयर प्लान. थर्ड 5 ईयर प्लान वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सेकेंड 5 ईयर प्लान, लेकिन ये कहीं ना कहीं अर्बन बायसनेस को, मतलब ये कह लो इस पे बेस था. थर्ड 5 ईयर प्लान इट स्ट्रेस्ड
on agriculture and improvement in the production of wheat and rice. सो ऑलमोस्ट बच्चे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है डैम्स की भी, बहुत सारी सीमेंट फर्टिलाइज़र प्लांट्स लगाए गए हैं स्पेशली इन पंजाब रीजन एंड सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र प्लांट्स के साथ साथ पंजाब रीजन में वीट को बहुत इनकरेज किया गया है, बहुत से प्राइमरी स्कूल्स खोले गए. लेकिन बच्चे ये जो अर्बन एरिया की बायसनेस की मैं बात कर रही हूँ, थर्ड 5 ईयर प्लान में जितनी भी डेवलपमेंट हुई थी वो मेनली जो है अर्बन एरियाज़ में थी. रूरल एरियाज़ को यहाँ क्या किया गया था, इग्नोर किया गया था. एंड इसकी जो टारगेट ग्रोथ रेट थी इट वाज 5.6%. हमने टारगेट रखा था कि जो टारगेट ग्रोथ है हमें 5.6% चाहिए, बट आपको पता है बच्चे एक्चुअल ग्रोथ क्या हुई थी, इट वाज ओनली 2.4%. दैट इज़ वाई जो फोर्थ 5 ईयर प्लान आना था फ्रॉम 1966 टू 60 आगे जो 69 तक हमने प्लान हॉलीडे ले ली थी. प्लान हॉलीडे का मतलब है थर्ड 5 ईयर प्लान का इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, टारगेट रेट्स ओनली 2.4% थी, तो वो हम फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमने थोड़ी सी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसे नहीं सेट किया. इसके बाद बच्चे अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम्स की कि 5 ईयर प्लान्स में क्या प्रॉब्लम्स रही हैं बच्चे, दैट टाइम इंडिया जो था कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी. और बच्चे हमें जो है टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बाहर से क्या करनी पड़ती थी, इंपोर्ट करनी पड़ती थी. और मैंने आपको बच्चे बताया है कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए टैरिफ्स लगाए गए थे, टैक्सेस लगाए गए थे. इसका मतलब हम बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट ना कर कर हमने अपनी पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन को, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकंड 5 ईयर प्लान में. लेकिन बच्चे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो यही थी कि टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस की वजह से हमें टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवानी पड़ रही थी, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो हमें पेमेंट देनी पड़ती थी वो फॉरेन करेंसी में देनी पड़ती थी. एंड एज अ रिज़ल्ट फॉरेन एक्सचेंज जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, कम होने लगा. इसके अलावा बच्चे इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाने लगी एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, क्योंकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे या जो लोग थे उनको समझ आ गया कि इंडस्ट्रीज़ में फ़ायदा है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने से इतना फ़ायदा नहीं है. क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान की इतनी टारगेट जो ग्रोथ रेट थी वो इतनी अच्छी नहीं थी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड 5 ईयर प्लान जहाँ हमने इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया. तो उन्होंने इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगाने लगे और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कम करने की वजह से फूड क्राइसिस आने लगा. एंड फूड क्राइसिस आएगा तो फूड भी बाहर से मंगवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैंने बताया सेकंड 5 ईयर प्लान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया और इन्फ्लेशन रेट भी बहुत बड़ी है. इसके अलावा बच्चे एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, ये इसका यहाँ पे है कि अब लोग मतलब जो इन्वेस्टर्स थे दे वर समवेयर कंफ्यूज कि एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दें या इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा वैल्यू दें. So student, I hope these topics are clear to you. In the next we will discuss the topic private and public sector. So if you have any doubts student, you can call me. Thank you.